we are falling short in our, and unless until river becomes, you can say, our center of attention, river-centric development, unless until we think of those, on those lines, we will not be able to do justice with our natural systems. River is one of the part of, very vital part of our ecosystem. So my point will be, it is basically how the suggestions and their practical aspect of those suggestions are to be looked into. We have to think of how we can clean our banks, how can we regenerate our banks, and how can we think of increasing the flow. I'll request that we kindly carry on those discussions. I'll ask Praveen to give few more points, and then we can take cue from your and whatever proceedings of the workshop are. We'll certainly assimilate those particular viewpoints, and with ma'am, I know her since last 3-4 months, and we expect that we will be getting guidance as well as we will be working together in collaboration for the That is the biggest achievement today, inspirational. ये उनका पीपीटी था रबर बैंड रबर बैंड्स का है, बट आपको आगे देखना है ये वाला डायग्रामेटिकली है, बट प्रवीण जी इज डूइंग सॉलिड वर्क. So little if we can get some idea about what exactly presently Namami Gange is doing under these projects, what kind of a rejuvenation or restoration things which is in the agenda as such. If we know, that would be helpful. Further we can add to it. Praveen, if you can provide a good account of what we are doing on the yeah. So, probably let's start with what Vishnu knows, and sorry, sir, we have to but like let's say presenting that is very very close to us. So Exactly. technology and nature-based solutions. He will tell you more. He is a storehouse of knowledge. Now we already have implemented one project where we are on SPT technology from IIT Mumbai. Yes. And we are thinking more of such projects, but those are for smaller size projects where we do not have much of the flow and issues. For smaller solutions, smaller UAVs, we are promoting nature-based solutions. So that is one thing, and specifically let's start Start it, sir. आवाज नहीं आ रही इसमें. हेलो आ रही है. अच्छा ठीक है. So probably let's start कि आपका concern क्या है, then whatever the 5 points I think factual information on those 5 points. तो हिंदी चलेगा, आप हिंदी में बोलिए ज़्यादातर. अच्छा ठीक है. So जैसे हम यमुना जी की बात करते हैं, तो यमुना जी में हमारा जो हम सबको पता है यूनिवर्सिटी से निकलती है डाक पत्थर में, हमारा उसमें पहला बैराज है, और उसके बाद में जब हम डाक पत्थर से नीचे पोल्टा साइड से होती हुई जब हरियाणा में घुसती है, तो हरियाणा में उसमें हमारा वाटर डाइवर्जन होता है. वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल में हम ऑलमोस्ट, हाँ, ताजेवाला जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 99% पानी यमुना का निकाल लेते हैं. सो मैं मोटा मोटा आप सब लोग क्योंकि यमुना जी से जुड़े हुए हैं तो ये सब फैक्चुअल बात है, सिर्फ आपसे एक लिंक बनाने के लिए बात बता रहा हूँ. उसके बाद में तो हमारे जो बेसिन स्टेट्स हुए जो 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 हुए, ऊपर से हम बात करें तो उत्तराखंड के बाद में हमारा थोड़ा हिस्सा आता है हिमाचल का. हिमाचल के बाद में ओके, उसके बाद में इशू आता है हमारा, अगर हम बात करें राइट बैंक की, तो राइट बैंक पे पूरा हरियाणा है, लेफ्ट बैंक पे बात करें तो लेफ्ट बैंक पे पूरा यूपी है, और फिर उसके बाद में यमुना जी दिल्ली में आती है, और दिल्ली के बाद फिर अगेन हरियाणा यूपी के बॉर्डर से होते हुए यूपी से बहती हुई प्रयागराज जी में जाके यमुना जी का यमुना में था. तो अब जो हम अब बात कर रहे हैं, तो हमने सबसे छोटी सी त्रुटि करूँ बीच में. यमुना जी दिल्ली में टाइम लगने का, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल बात है, बट क्योंकि आप सब लोग नदी से जुड़े हुए लोगों से बता देते हैं कि जैसे आप मंथन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में सेशन अपडेट हो गया है,
सारे क्वेश्चन यमुना जी पे ही आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि यमुना जी में सिर्फ हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं, जो ऊपर के लोग हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, और ये एक अच्छा संदेश है। हालांकि हम लोगों के लिए काम बड़ा है, मतलब हमारा यमुना जी पे एक क्वेश्चन आएगा तो हम 3 घंटे लेंगे, और अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम रात को बैठ के भी पर ये एक अच्छी चर्चा है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट में चर्चा ना हो, हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं शायद उसका भी प्रेशर है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट्रियन है वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हम में से के बीच के लोग हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले हम जैसे मैडम ने पूछा प्रदूषण की बात करें, पहले प्रदूषण की बात करें फिर फ्लो की बात करें। तो यमुनोत्री से निकलने के बाद रात पत्थर तक यमुना जी का पानी आचमन योग्य है, आप पी सकते हैं। हालांकि जो आप मानते हैं सर कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड ये कहता है कि किसी भी यमुना नदी का पानी बिना डिसइंफेक्ट किए मत पीजिएगा, लेकिन हम फिर भी बोल सकते हैं कि आचमन योग्य है, हम आचमन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला से जो पोल्यूशन आता है वो हालांकि बड़कोट वगैरह का छोटा छोटा है, बट उससे कोई नदी की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहला बड़ा शहर आता है पोंटा साहिब, बड़ा भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो हमने पोंटा साहिब में हिमाचल गवर्नमेंट को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए नमामि गंगे में सहायता दी, और वो STP बनाए हैं उन्होंने पोंटा साहिब। पोंटा साहिब के बाद जब हम नीचे आते हैं तो पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में जो यमुना बेसिन में से मोटा मोटा 1400 mld के आसपास सीवेज जनरेट होता है, और हरियाणा में के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एज ऑन डेट मोटा मोटा 1700 mld की है। तो पेपर पे ये दिखता है कि यमुना जी में प्रदूषण नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। ये 1700-1400 मैं बोल रहा हूँ, ये एवरेज है। कुछ किसी शहर में 50 mld ज़्यादा है, किसी शहर में 50 mld कम है। जैसे अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो मेजर गैप आता है हरियाणा में वो आता है फरीदाबाद, पलवल और थोड़ा सा गुड़गांव में, और ये इन तीनों से ही हमारी यमुना जी अफेक्टेड है। हालांकि दिल्ली के नीचे हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन इन शहरों में अभी आवश्यकता है। जो हाँ, जो नमामि गंगे में हमने 2 शहर में इसमें हमारा सोनीपत में हमने STP बनवाए और पानीपत में, बाकी उन्होंने अपना उनके माइक्स ऑन करिए ना। अगर अब हम राइट बैंक के बाद लेफ्ट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक में हमने स्टार्ट किया है। पहले मैं यमुना की बात करता हूँ, तो यमुना की सहायक नदियों की भी हम बात कर सकते हैं हिंडन की। तो उसमें ऊपर आता है केराना, जिसका पानी उधर यमुना जी की तरफ जाता है। केराना के बाद में आता है बागपत। ये 2 ही शहर ऐसे हैं ऊपर की तरफ जिनका पानी डायरेक्ट यमुना जी में जाता है। बाकी जो जितने भी शहर हैं यूपी के, चाहे आपका बड़ौद हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, चाहे आपका शामली हो, चाहे आपका सहारनपुर हो, ये सारे के सारे हिंडन की तरफ ड्रेनेज करते हैं शामली। तो हम मेन यमुना की बात कर रहे थे। उसके बाद में दिल्ली का पोर्शन आता है, और हमारे जो गाजियाबाद है और नोएडा है और ग्रेटर नोएडा है, उनका भी ड्रेनेज हमारा हिंडन में है, डायरेक्ट यमुना में ना। इनके लिए भी हमने अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि समय की बाध्यता को देखते हुए मैं बता दूँगा कि इनमें भी हमने क्या क्या इंटरवेंशंस किए हैं जो अभी पूरे होने हैं। और उसके बाद में जैसे दिल्ली आ जाता है, दिल्ली की एक अपनी समस्या है, शायद दिल्ली पे हम अलग से बात कर सकते हैं, पर अब यूपी की जब बात चल रही है तो दिल्ली के डाउन स्ट्रीम में हमने यूपी में सबसे पहले वृंदावन शहर आता है, तो हमने वृंदावन में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। उसके बाद में हमने अभी जो उसके आसपास के शहर हैं, जैसे कोसी हो गया, छाता हो गया, उनमें हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। फिर आता है मथुरा जी, तो मथुरा में हमने 3 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, और एक नया 60 mld का अभी एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको बनाने का। उसके बाद में अगर हम और नीचे जाएँ तो फिर आता है आगरा में हम 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं सर। 183 mld के आसपास, जो क्षमता कम थी। जो आपने देखा होगा आगरा में जब लाल किले पे जाते हैं आगरा के, तो उसके पीछे से एक बहुत बड़ा नाला जाता है, मंटोला नाला। तो मंटोला नाला को हमारा टारगेट है कि अगले साल तक हम मंटोला नाला यमुना जी का सबसे बड़ा नाला है नजफगढ़ के बाद, अगर आप बात करें तो उस नाले को हम बंद कर पाए।
और फिर आगरा के बाद में हमारा ये प्रयास था कि आगरा के नीचे जो भी शहर, चाहे हमीरपुर है, इनमें जो भी आवश्यकताएं होंगी वहाँ पे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लें। तो ये तो एक मोटा मोटा हम वो बता रहे थे कि यमुना के लिए अभी नमामि गंगे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। इसके साथ जैसे हमने कुछ शहर छोड़ दिए जो हिंडन की तरफ आते हैं, जैसे सहारनपुर है, तो सहारनपुर का अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया है कि हिंडन जहाँ से बन के चलती है वहीं से उसमें पूरा अनट्रीटेड सीवेज आता है, क्योंकि पानी तो बरसाती नदी उसमें पानी होता नहीं है बाकी महीने में। तो हमारे प्रयास ये है कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो कम से कम हिंडन अपने उद्गम स्थल से चलते वक्त साफ हो। उसके बाद में हमने मुजफ्फरनगर का प्लांट बना लिया है सर। हिंडन में सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, फिर शामली ज़िले के 4 शहर हैं जो कृष्णी नदी के थ्रू, कृष्णी बोलते हैं हम, जो बरनावा में जिसका संगम है, जहाँ पे बोलते हैं कि लाक्षागृह हुआ था, वहाँ पे 4 शहर हैं जिसमें हमारा शामली है, थाना भवन है, और 2 गाँव बड़े गाँव हैं जिनमें बबरी और बंटी खेड़ा है। तो ऐसे करके हमने हर शहर का शहर वाइज प्लान बनाया है कि एक भी नाला सीवेज लेता हुआ बिना ट्रीट किया हुआ नदी में ना जाए। ये पूरा का पूरा हमने प्लान बनाया है और इसकी जो टाइमलाइन रखी है, अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग टाइमलाइन। तो नमामि गंगे में जो यमुना जी के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये मोटे मैंने आपको प्रयास बताया। प्रवीण जी, एक थोड़ा सा इंटरवेंशन करूंगी इसमें, क्योंकि अभी तक जब हम नदी की क्लीनलीनेस की बात आती है या उसको अविरल निर्मल बनाने की, तो हमारे पास एक ही होता है, हम STPs की बातें करते हैं। लेकिन जब हम STPs की बातें करते हैं, आज हम देख रहे हैं कि इवन सुप्रीम कोर्ट, NGT सब कह रहे हैं कि STPs रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इनइफेक्टिव है। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं फुलब्राइट से अभी अमेरिका से लौटी हूँ। मैनहट्टन के 286 मिलियन गैलन कैपेसिटी के STP के ऊपर मैंने काम किया है, जहाँ कि आज अपने को पता है वर्ल्ड ओवर सब लोग ये STPs को वर्ल्ड वाटर रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटी कहने लगे हैं इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जिस तरीके की होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी हमने एक ऑडिट भी कंडक्ट की थी इंदौर सिटी की और बैंगलोर की भी, जिसमें हमको दिख रहा है कि इनलेट एंड आउटलेट वाटर का जब हमने एनालिसिस करके देखा, उसमें बिल्कुल ज़्यादा फर्क है ही नहीं, क्योंकि हमारी STPs जिस तरीके का रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि आज हम सब जा रहे हैं तो SBR टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा चीप बैठता है, वरना हम आ जाते हैं MBR या MBBR टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमको सीवेज डिग्रेडेशन प्रोसेस कैसा होता है, उसमें किस किस तरीके की एलिमेंट्स है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स और माइक्रोब्स का जो रोल, पैथोजेंस का, तो वो सब हम अभी एनालिसिस में नहीं कर रहे हैं, और जिसके बेसिस पे ये डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि जो CPCB की भी मैंडेट जो दी गई है BOD COD के बेसिस पे ये डिज़ाइन सब हो रहा है। ये वजह है कि हमारे पास में रिजल्ट्स नहीं आ रही है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, ये सही है कि हम लोग STP की बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने भी जैसे बताया है कि हमको नेचुरल बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ जानी चाहिए। तो जब हम नेचुरल बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमको बायोलॉजिकली पूरा एनालिसिस करने का ज़रूरत है कि हम किस तरीके के प्लांट्स लगाएं आज, क्योंकि अभी एक अपना इंजीनियरिंग एसेट मैनेजमेंट की भी मीटिंग हुई थी, तभी भी हमने ये अपने सारस्वत जी वगैरह नीति आयोग के थे, तो हमने एक ही क्वेश्चन किया था कि वेदर अवर STPs आर एन एसेट और अ लाइबिलिटी, क्योंकि आज जिस तरह से उस पर खर्चा हो रहा है, और जब हम नमामि गंगे के अंडर में भी जब इनको हम जब ये STPs से हम ट्रीट कर रहे हैं, वापस हम उसी गंदे नदी में फिर से छोड़ दे रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में आज कोई भी तरीके का वाटर मैनेजमेंट का हमारे पास में स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो ट्रीटेड वाटर है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको बता दूं, मेरी मुलाकात UN में DG नमामि गंगे जो पहले थे अशोक कुमार जी हमारे साथ ही थे, और हमने तभी भी उनसे यही पूछा था, तो उन्होंने कहा अभी भी इतना अगर हम 300 mld 200 mld 550 mld इतना हम पानी स्टोर करेंगे कहाँ, तो हमारे पास में कोई चारा नहीं हम वैसे। मगर मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आइंदा अगर हम इस तरीके की जब भी हम अप्रूवल कर रहे हैं या कुछ भी, तो सबसे पहले तो इसका एक रेट्रोफिट सोचें, जो हम आज ये कर रहे हैं, मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो रेट्रोफिट किस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि हम रिजल्ट हो जाए। दूसरा है कि ये जो ट्रीटेड वाटर है, इतना सब हम तामझाम करके करोड़ों हम लगा के और फिर हम इसको जब ये ट्रीटेड वाटर जो हो रहा है उसका यूज़ के लिए, और मेनली आपको बता दूं आज STPs का सबसे बड़ा फ्लॉस जो है और जिसके वजह से हम रिजल्ट भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 चीज़ें मुख्यतः इसमें। एक तो है जो हम एरेशन कर रहे हैं, जिसमें 75% हमारा एनर्जी फिर हम उसका कॉस्ट जो जा रहा है, एरेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दूसरा है कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं MLDs में,
अभी हम एमएलडीज में इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसमें स्टॉर्म वाटर भी लगा दिया है, हमने ग्रे वाटर भी ऐड किया हुआ है, हमने सारा डोमेस्टिक वाटर भी किया हुआ है, जबकि हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत किसकी है? सिर्फ जो टॉयलेट वाटर, जो पूप वाटर है उसकी ज़रूरत है। तो अगर हम इस सब चीज़ों को दो अलग तरीके से उसकी ट्रीट करें, क्योंकि जो ग्रे वाटर है उसकी ट्रीटमेंट है, तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देते हुए अगर इसके ऊपर काम करें। पटनायक जी will explain after. No, I can, I mean, आपके पॉइंट हम सारे अभी अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट एक तो ये है कि हमारा जो एप्रीहेंशन है कि STPs do not work, probably I don't agree. It's just like कि इस कमरे में आपने 10 लाइट्स लगा रखी और हम कहें कि लाइट से रोशनी नहीं होती, वो गलत बात है। प्रोबेबली हम लाइट ऑन करेंगे तो रोशनी होगी, अगर हम लाइट बंद करके बैठे तो 40 की 80 लगा देंगे तब भी नहीं चलेगा। एंड सेम इज विद STP, प्रोबेबली सर आल्सो एग्री। वी आर नॉट सपोर्टर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी लाइक SBR और SBT और ASP, MBR, MBBR, व्हाटएवर इट इज। आप कोई सा भी STP है, बिकॉज STP जो बनाना है उस इतना सिंपल सोल्यूशन है, सबसे सिंपल सोल्यूशन है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आप जैसे और मेरे जैसे जो हम बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने इसको इंजीनियरिंग में इतना मुश्किल बना दिया, जबकि इससे सिंपल नेचुरल साइंस कुछ भी नहीं है। आप पानी को दोनों तरीके से साफ कर सकते हो, आप हवा डाल के साफ कर सकते हो, जो आपने कहा एरेशन करते हैं, आप एनारोबिकली भी साफ कर सकते हो। हर सिस्टम का अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। सो हम उसमें हम नहीं जाते, बट आई इनवाइट यू कि आप STPs का अब हमें रीज़न करते हैं कि उसे मॉनिटरिंग कैसे किया जाए। सो मॉनिटरिंग के लिए हमने क्या किया है सर कि हमारे जो 400 STPs मोटे मोटे हमारे गंगा बेसिन में अभी हो जाएंगे। 400 STPs को हम चाहते हैं कि 400 STPs हम यहाँ दिल्ली में बैठे आपको बता सकें कि फलां STP ने कल इतना पानी साफ किया, अभी इतना पानी साफ कर रहा है, इस कैपेसिटी पे चल रहा है और इस पानी का BOD ये है। सो ऑनलाइन हमने 181 STPs 181 STPs अभी इंटीग्रेट किए हैं। आप हमारे साथ चलिए, हमारे नमामि गंगे के ऑफिस में एक हमने वो रूम बनाया है और आपको इतना बड़ा डिजिटल स्क्रीन है जिसपे हम आपको 181 STPs कैसा पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं BOD दिखा सकते हैं। ये हो गया वन कॉन्सेप्ट, ये आप और मैं जो इंजीनियरिंग लोग हैं वो समझते हैं। अब हम उसमें एक नई चीज़ और ऐड कर रहे हैं, हम सारे के सारे STPs के इनलेट आउटलेट और STPs CCTV मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो अभी हमारा टारगेट है कि हम मार्च तक सारे STPs को इंटीग्रेट कर लाएं। फिर हम आपको बताएंगे कि ये 5 BOD का पानी गिर रहा है, आप समझ जाएंगे 5 BOD कैसा है। लेकिन लेमैन को हम दिखाएंगे कि 5 BOD का पानी इतना साफ है। अगर वो काला होगा तो लेमैन को तो लगेगा ना कि नहीं भाई आपका जो BOD 5 है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, गंदा पानी STP में जा रहा है, आपका नदी में जा रहा है। So we are integrating not only the online water quality monitoring but also the visual water quality in the real time scenario. So ये हो गया कि आप STPs को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे। आप हमसे कल का डेटा पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने कल कितना किया, कल तो ये STP बंद था, तो हम आपको पावर कंजप्शन के साथ बता सकते हैं कि इतने बजे STP चालू हुआ, इतने बजे बंद हुआ, इतने बजे इतना फ्लो ट्रीट किया, इतने बजे इतना फ्लो ट्रीट किया, इतने बजे ये वाटर क्वालिटी थी इन टर्म्स ऑफ केमिकल पैरामीटर और इन टर्म्स ऑफ विजुअल उसका ये वीडियो है। सो सच टाइप ऑफ रोबस्ट मैकेनिज्म वी हैव टू डेवलप। This is one thing which you said about the like STP. So I'll come back to that BOD which you say, sir. That's the wrong kind of a parameter which today we are dealing with. BOD is nothing but जो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत, मगर हम जो आज जो पैरामीटर पे जो पैथोजन के पैरामीटर पे DOs ये सब हम अगर चेक करें तो हमको तब पता चल जाता है। So why I said BOD, I didn't want to go into those details. Like we do monitor BOD, we do monitor COD. Now there are certain TSS, we do monitor pH, we do monitor total nitrogen, we do monitor total phosphate, and we do monitor coliforms also. So pathogens also. So we I just give you example of BOD, but ये जो 7 रेगुलेटरी पैरामीटर है, ये सातों के सातों रेगुलेटरी पैरामीटर पे हम लोग उसका मॉनिटरिंग करते हैं। अब ये कि भाई STPs जैसे सर ने बिगिनिंग में ही कहा था कि देखिए हर नदी का एक पोटेंशियल होता है।
हम पूरे गंगा बेसिन में देखें तो मोटा मोटा सर 5000 किलोमीटर होगी नदियाँ, 2500 गंगा जी लगा लीजिए। मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ, टोटल 2525 हमारी गंगा जी और ट्रिब्यूटरी सारे जो हैं तो आप 10,000 किलोमीटर का गंगा बेसिन में आप रिवर लेते हैं। टोटल 64 करोड़ पॉपुलेशन इसको डिपेंड करती है। तो आप अगर वर्कआउट करेंगे तो 50 से 60,000 पर किलोमीटर पॉपुलेशन ह्यूज प्रेशर है। छोटा प्रेशर और नहीं सबसे उसके बाद दिल्ली का बताइए, देखिए दिल्ली के बराबर है। 1300 किलोमीटर की है, लेकिन इसका पॉपुलेशन मैक्सिमम यहाँ। हाँ 20 किलोमीटर में अब हम बात करते हैं कि 2.5 करोड़ तो दिल्ली में है, और ये 2.5 करोड़ ही दिल्ली के एनसीआर में है, जिसमें आपका गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, मानेसर हो गया, गुड़गांव हो गया। सो इस एरिया में आपने क्या किया, और जैसे बोल रहे थे कि और वो फैक्चुअली करेक्ट है। यमुना जी में जैसे हालांकि आपने जो 5 पॉइंट बताए थे, हम सोच रहे थे कि इन 5 पॉइंट्स पे भी हम क्या कर रहे हैं, और लाइक टू नो आपको ब्रीफ बता दें, क्योंकि हमने सबको बताया। यमुना जी को हमने पहली बात तो ताजेवाला में रोक लिया है। ताजेवाला के बाद में अगर थोड़ा बहुत जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और शायद इस तरह के डिस्कशन से प्रेशर बना था, उस टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं आपको 10 क्यूमेक तो छोड़ना ही छोड़ना है, वो एनवायरमेंटल फ्लो ताजेवाला से, वो अब 10 एक ये अलग बात है कि 10 क्यूमेक कम है ज़्यादा है, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक नदी का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन जब वही पानी हमारे यहाँ वजीराबाद आ जाता है, तो आप चलिए अभी चलिए यहाँ से 20 मिनट लगेंगे, आप देखिए वजीराबाद बैराज से सिर्फ उतना ही पानी आ रहा है जितना वो लीक हो गया है। लिटरली वो एक बूंद भी पानी वजीराबाद बैराज से यमुना जी में नहीं आ रहा है। और जो हम लोग मथुरा में और वृंदावन में आचमन करते हैं, वो हमारा जो ये जो यहाँ का जो सीवेज है उसको हम जितना साफ करके डाल रहे हैं, हालांकि उसमें भी अभी हमें कहाँ गैप है वो मैंने आपको बताया, यहाँ काम करने की जरूरत है, यहाँ काम हो भी रहा है, तो वही पूरा का पूरा पानी मथुरा और वृंदावन में पहुँचता है। सो अभी लिटरली अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप बताइए कि क्या जो मथुरा या वृंदावन में जो पानी पहुँचता है वो यमुना जी का जल है? आप आइसोटेपिक एनालिसिस करेंगी तो भी नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ कि यमुना जी से निकाला हुआ जल भी नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली में जो पानी मिलता है हमें पीने के लिए, यमुना जी से दिल्ली में मोटा मोटा 31% वाटर सप्लाई होती है। बाकी पानी गंगा जी से लाते हैं, अपर गंगा कैनाल से सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे ज़्यादा पानी आता है, और आधा पानी हम लोगों को सतलुज से मिलता है, जो दिल्ली का राइट है, जो CNC और मुड़ाक से मिलता है। तो अगर आप यमुना जी का दिल्ली में जो पानी जैसा भी है उसका भी अगर आइसोटॉपिक एनालिसिस करेंगे तो उसमें यमुना का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। तो ये प्रॉब्लम है, और उसका शायद आज सुबह जो डिस्कशन हुआ था कि यमुना जी पे स्टोरेज नहीं है, एंड दैट इज द वे। शायद लास्ट अभी ये जो पिछला कुंभ हुआ था उससे पहले हम लोग मथुरा वृंदावन में सभी संतों के साथ बैठे थे, और उन्होंने भी हमें ये कहा था कि हम हर तरह के बांध का विरोध करते हैं, लेकिन हम खुद ये चाहते हैं कि यमुना जी पे कुछ स्टोरेज हो, ताकि जो नॉन मानसून मंथ हैं वहाँ पे पानी कंटिन्यूसली आता है। और गंगा जी में आप हम तो बहुत छोटे हैं, बड़े लोग हमसे वो पूछिए कि टिहरी से पहले गंगा जी में ड्राई मंथ्स में मुझे तो चिदानंद जी सरस्वती ने बताया कि हम लोग बिल्कुल अंदर जाके स्नान करते थे। अब आप देखिए हरिद्वार ऋषिकेश, क्योंकि बट ये सोचना है, और ऐसा नहीं है सरकार प्रयास नहीं कर रही है। 3 बड़े डैम जो हैं स्टोरेज हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें यमुना जी पे एक लखवार है, एक रेणुका है, और तीसरा किशान है। लेकिन आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि लेकिन हमें ये प्रेशर रखना है कि जितना पानी सरकार और अथॉरिटीज इकट्ठा करेंगी वो आपस में सब लोग बांट लेंगे। हमें वो प्रेशर क्रिएट करना है कि भाई जो पानी इकट्ठा हो उसमें यमुना जी का हिस्सा कितना रहेगा। सो मतलब आई एम नॉट सपोज्ड टू से दिस थिंग, No, because today we discussed this, Deepak जी ने ये तो बताया प्रेजेंटेशन में, water dams की, और what is the Bharat solution? So I would like 2018 में गंगा जी के लिए डिफाइन हुआ कि ई-फ्लो नोटिफिकेशन वो राष्ट्रीय स्वच्छ हमारा नमामि गंगे ने ही लेके आए, और
बंद कमरे में बता सकता हूँ कि उस पर भी बहुत डिसएग्रीमेंट था कि ये इतना आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जितना पानी है, पानी एक स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से आपने सारा पानी बांट लिया। अब उसमें बड़ा भाई कौन बनेगा कि भाई मैं अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर 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 बहुत अच्छे हमने हमारी बड़ी सीनियर लेवल पे जब मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि हम पानी छोड़ भी देंगे ना तो भी ये इशू ऐसा बन जाएगा कि मान लीजिए हरियाणा छोड़ देता है फॉर एग्जाम्पल, तो कहेंगे कि हरियाणा ने अपना पानी यूपी को दे दिया। दिस इज जस्ट माइंडसेट जो अंडरस्टैंड। बनाया है, सेपरेशन जो कर दिया। सो पहली बार जब ये नोटिफिकेशन हुआ गंगा जी के लिए, उसमें भी जो सोसाइटी का जो प्रेशर था, नॉट से कि पार्लियामेंट से हुआ वाला बात है, लेकिन जो सोसाइटी का जो प्रेशर था, सिविक सोसाइटी का प्रेशर था, जो एक्टिविस्ट का जो प्रेशर था, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और प्रोफेसर जो हम जीडी अग्रवाल ने तो अपनी मतलब भाई, और उसी की वजह से मैं आज भी हम ये चर्चा कर रहे थे। और जब ये हुआ तब उससे पहले इसको स्टार्ट करने वाली हमारी देन मिनिस्टर थी उमा भारती जी, तो उनका कहना था कि लेट्स स्टार्ट विद वन रिवर एंड व्हेन वन रिवर अदर्स रिवर विल स्पीक मी टू। उस टाइम एक मी टू का एक बड़ा उन्होंने कहा था कि बड़ा गलत शब्द है, बट आई एम यूजिंग इट कि एज ए रेफरेंस इन ए डिफरेंट कंटेक्स्ट। और ये हुआ। अब देखिए, जब पहली बार गंगा जी के लिए हुआ, उसके 2 साल बाद बहुत सारे कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि आप यमुना जी के लिए कीजिए। तो कहा था कि यमुना जी की कोई स्टडी ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलिए पहले सबसे पहले एक स्टडी तो कमीशन कीजिए। तो सबसे पहले एक स्टडी, एक NIH ने एक स्टडी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट हमने सभी स्टेट्स के साथ शेयर की। तो अब जिसका पानी जा रहा है उस स्टेट को तो रिजर्वेशन होगा ना, क्योंकि उसका हो सकता है उस पानी का वैसे उतना असर ना पड़े, लेकिन एक जब तक सोसाइटी से प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो अपना राइट छोड़ने में भी उसको उस इशू को दिक्कत आती है। और अब हम बता भी सकते हैं सर कि हमने ये सिस्टमेटिक ये किया कि यमुना जी का हमने स्टडी करवाया। लेट्स डिस्कस इट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट, रिलीजियस, जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो उनको, और सबका व्यू लेते हुए क्या कल को कंसेंसस बनते हुए, अब क्योंकि जब यमुना जी पे स्टोरेज बन रहा है 5 साल 7 साल बाद, तो क्या हम उसमें से कुछ पानी छुड़वा सकते हैं यमुना जी के लिए, और मुझे लगता है वही हम लोगों को करना है। अब हम इसी तरीके से बाकी नदियों की स्टडी करवा रहे हैं, हम रामगंगा की करवा रहे हैं, हम 4 और नई नदियाँ हमने ली हैं, और अब हमारा प्रयास है कि अगले 2 या 3 सालों में हम गंगा बेसिन की जितनी मेजर नदियाँ हैं सबके लिए पर्यावरणीय प्रवाह कितना होना चाहिए, उसकी एक स्टडी और एक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो। फिर उस पर सब लोग बैठ के डिस्कस करें, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये इतना कैसे अचीव किया जा सकता है, उसका धरातल पे उसको हम कैसे ला सकते हैं। तो इन सब दिशाओं में हम काम अभी कर रहे हैं। प्रवीण जी, इससे सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो नदियों की आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन, जो आज जो छोटी छोटी नदियां हैं, बिकॉज हम लोगों को अगर जब नदी की बात करते हैं तो हम ज़ीरो ऑर्डर स्ट्रीम ऑनवर्ड्स हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर वर्क। और सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव नॉट बीन नोटिफाइड, और उसी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट वगैरह ये जो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए ये जो बहुत हमारी नेशनल रिवर एक्ट जो है बहुत पुरानी है, और जिसमें कहा गया है कि हर नाले, ओढ़े, स्प्रिंग्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड। तो उसके ऊपर भी नमामि गंगे का कुछ ये है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, सी गंगा ने हमारे साथ सेंटर फॉर गंगा, IIT कानपुर और कंसोर्शियम, इट इज अ कंसोर्शियम ऑफ IITs, दे हैव यूपी की एटलस उन्होंने पब्लिश भी कर दिया है, ऑल द रिवर्स की, ऑलमोस्ट 3000 रिवर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, लोकेट किया है, और उसके स्टेटस को भी उन्होंने इस पर बहुत चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम जीरो ऑर्डर टू मतलब मेन स्टेप वी आर रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर लेवल, यू कैन से। Because sir, on the river basin approach way, if we are taking a river, then all the stream orders can be identified, tributaries, contributaries and all, and then we can decide about the flow, like deepening and widening of the rivers. I think that should be our also additional. I'll just tell you one thing. Yeah. Kindly just Google one thing, a thought
this is the first time in the country the river has been given prominence and a mission has been established. आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि this is a unique mission, नेशनल मिशन फॉर क्लीन रिवर. मैं अब आपको बताता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसीजन मेकिंग फास्ट ट्रैक करने के लिए क्या किया. The mission has been first of all registered under Societies Registration Act. Oh. So that it is a autonomous. When was it done? It was way back, Societies to 2010, and the mission has been empowered with regulatory functions through this authority order under Environment Protection Act of 2016 or 17, October 17. So it has got dual function to facilitate as well as to regulate. You take any river basin authority in the world, be it from Europe, be it from US, it will not be having both the function of regulation as And well administration. as Facilitation. Both the things have been provided, management as well as regulation, both have been given. Then if you see, the first thing has been provided, if you go through that authority order, it's a wonderful document which the government has created. It works for connectivity from vertical, lateral, all the three-dimensional connectivity of river. It talks about e-flow. It talks about, you can say, the unpolluted river. It gives almost a status of living entity to the river Ganga and its tributaries. Instead of almost, why don't we, your society, we will give you a recommendation, actually get it declared as a living being. It's already, yeah, it's No, national river है, but it's not taken as a category of living being. Not उसमें दो तीन चीज़ें हैं. जैसे हम लोग आज सुबह आना भी चाह रहे थे बिकॉज जैसे आपने फ्लड प्लेन डिमार्केशन की बात की. तो फ्लड प्लेन डिमार्केशन का क्या तरीका है? ठीक है, एक तो आपने कहा कि ठीक है फ्लड प्लेन डिमार्केट कर दीजिए, लेकिन फ्लड प्लेन डिमार्केशन में सबसे पहले ये होगा कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि फ्लड प्लेन कहाँ तक है. पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए, देन वी विल कम टू द राइट कि ये रेवेन्यू लैंड है, ये प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है. ठीक है. और अगर आप देखें तो हम में से बहुत सारे लोग नोएडा हमने देखा होगा नदी की बिल्कुल जहाँ नदी बहती है उसके नीचे की भी आपको प्राइवेट लैंड मिलेगी कि ये तो फला खसरा है, ये खसरा नंबर इतना है और इसका राइट इसके पास है. तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसमें हम लोगों को जुडिशरी की हेल्प लगती है. एंड वी वर फॉर्चुनेट कि हम लोग जब भी ऑनरेबल एनजीटी में मैटर गए, ऑनरेबल एनजीटी ने इतने अच्छे ऑर्डर्स दिए कि भाई आप डिमार्केट कीजिए, डिमार्केट करने के बाद जिसका जो जगह है उसको कंपनसेट कीजिए. एंड आप पहले बताइए कि पहले उसमें खरीद फरोख्त रोकिए ताकि उसका आगे वो ज़मीन बिके ना. और फिर आप सोचिए कि आप कैसे कैसे कहाँ पे उसको एक्वायर करने की जरूरत है. तो फिर सरकार उसके लिए प्लान बनाएगी और एक्वायर करेगी. फिर फ्लड प्लेन डिमार्केशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. उसमें मैं आपको दो तीन बातें बता दूँ. उन्होंने उस टाइम बोला था कि 500 स्टेट्स को कि आप फ्लड प्लेन डिमार्केट करिए, और नहीं करेंगे तो हम पर्सनल अपीयरेंस करेंगे चीफ सेक्रेटरी. उसमें उत्तराखंड ने कर दिया, उत्तराखंड ने नोटिफाई भी कर दिया, उन्होंने डिमार्केट भी कर दिया और उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया कि ये हमारा फ्लड प्लेन है और यहाँ से हम लोग ये हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, ये एक्टिविटी हम परमिट करेंगे. जैसे उन्होंने लिखा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हम कुछ नहीं बनाने देंगे फ्लड प्लेन में, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया. उन्होंने कहा कि हम घाट बनाएंगे. तो घाट तो नदी के किनारे ही बन सकते हैं. नदी से अगर 4 किलोमीटर दूर घाट बनाएंगे तो घाट का मतलब क्या है? स्नान घाट तो होगा. इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम नदी में नाला गिर रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए अगर पंपिंग स्टेशन बनाना है तो वो भी वही बन सकता है जहाँ नाला गिर रहा है. तो इस तरह बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन उन्होंने लेके आया. यूपी ने भी बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने आई थिंक कानपुर तक उस टाइम चेयरमैन कुमार सर थे उस टाइम. उन्होंने क्योंकि डेली हियरिंग उसका होता था
और लोग कुछ नोटिफाई किया, बाकी उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर डिमार्केशन का कहा कि आप डिमार्केट कीजिए। अब उसके बाद में आता है कि बिहार का बात आता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन एनी ऑफ द स्टेट बिकॉज, बट उनका कहना था कि फ्लड प्लेन की जो डेफिनेशन जो होती है वो कहती है कि बारिश के सीजन में जहाँ तक पानी जाए, 3 जोन है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। सो और उसका जो नोटिफिकेशन या जो अथॉरिटीज कहती हैं कि वंस इन 100 ईयर के साइकिल पे आप करिए, कि पिछले 100 साल में जहाँ तक बाढ़ का पानी गया था उतने को आप नो कंस्ट्रक्शन या आप फ्लड प्लेन डिमार्केट कर दीजिए। तो यहाँ जो कुछ लोग होंगे तो बताइए, नॉर्थ बिहार में तो मुझे लगता है हर साल ही so practical challenges like flood plain somewhere were becoming say 300 kilometer wide. So can it be notified? 300 किलोमीटर के बीच में हजारों काम होंगे। So there are challenges and we are not saying कि so अब ये हम लोगों को बैठ के डिसाइड करना है कि what is practically which can be done. Otherwise तो अगर आप उस नोटिफिकेशन से जाएंगे तो आप आधे से ज़्यादा बिहार जो नहीं नोएडा तो है ही है। नहीं, उसका जो मेन स्कीम जोन है, उस मेन स्कीम जोन में आपको रेड जोन डिसाइड करना है। नहीं वो ठीक है, उसका येलो जोन नहीं वो है ग्रीन जोन डिसाइड। नहीं, मेन जोन में भी अगर इवन जो डेफिनेशंस हैं जो जिस तरीके से कर और उस पर भी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो उनको तकलीफ तो होती है। लेकिन दिल्ली के लोग यमुना जी के प्रदूषण से सफरर नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से साफ पानी मिलता है। जो सबसे ज़्यादा सफरर है वो हमारे मथुरा के लोग हैं, वो हमारे वृंदावन के लोग हैं, वो हमारे नीचे के लोग हैं, जो उसके नीचे के लोग हैं। तो उनके लिए भी ये था कि हम क्योंकि हमारा सभी से सेवा भाव चलता रहता है, तो हम तो उनको कहते हैं कि महाराज जी मतलब हम तो चाहते हैं कि आप आके हमारे साथ बैठ जाए, आप जाके सोसाइटी में बैठ जाइए, आप कहिए कि ये जो आप दिल्ली का गंदा और जो पानी हमें दे रहे हैं आचमन के लिए आप करके दिखाइए। और मैं तो कहता हूँ आप चारों स्टेट्स के सीएम को बुला लीजिए और कहिए कि भैया ठीक है, आप अपने अपने स्टेट में यमुना जी से आचमन करिए, बस बात खत्म। आप क्या प्रयास कर रहे हैं, हमें और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। सो हमारी एक मतलब दूसरी कुर्सी के दूसरी तरफ बैठने से थोड़ी मर्यादाएं हैं, और हम लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं या हम यमुना जी को कम प्रायोरिटी है। प्रोबेबली हमारा जो टोटल बजट है उसमें से हमारा 20% के आसपास खाली सिर्फ और सिर्फ यमुना जी पे है, जिसमें हम क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा स्टेट्स का और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हम राज्य सरकार को फंड मुहैया करवाते हैं, पैसे सपोर्ट देते हैं कि आप ये काम कीजिए, और उस काम को हम मॉनिटर भी करते हैं। तो उसमें हम हिमाचल को पैसे दे रहे हैं, हरियाणा को पैसे दे रहे हैं, यूपी को पैसे दे रहे हैं, दिल्ली को पैसे दे रहे हैं। दिल्ली में जो अभी आपने यूएस के प्लांट का जिक्र किया, हम अब एशिया का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट 564 mld का अभी हम शायद कोशिश तो थी हमारी कि हम नवंबर दिसंबर में उसे चालू करें, तो चल रहा है मतलब अभी, लेकिन हम उसे ऑफिशियली शायद अब देखिए कब जनवरी फरवरी में कब उसे हम उसमें एक उसे चीज़ ऐड कर दीजिए कि उसका सारा ट्रीटेड प्लांट इरिगेशन में दे दीजिएगा यमुना में। एक्चुअली इस पे भी एक बड़ा झगड़ा हुआ। आप देखिए जब ये कहा था कि आप ट्रीटेड पानी इरिगेशन में दे दीजिए, हम दे देंगे, लेकिन उस ट्रीटेड पानी को इरिगेशन में देने के बदले हमें जितना पानी हम इरिगेशन में दे रहे हैं उसका कम से कम आधा पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट नदी में छोड़े, हमें मंजूर है। वो अपना कोटा तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप जो इतना पानी उनको साफ करके दोगे वो कहेंगे हम दे देंगे। तो फिर तो आप अगर ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो फिर यमुना जी में तो आप दिल्ली में पैदल पार कर जाएंगे, क्योंकि आपने पानी तो एक बूंद भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए हमने एक नया प्रयास किया है, वो भी अभी चल ही रहा है, और उसमें बहुत परेशानियां आ रही हैं। हालांकि आई डोंट नो कि वो एक्सक्यूज मी नवीन, क्योंकि प्रवीण जी 2-3 साल पहले न्यूज़ में था कि होम मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यमुना जी के लिए एक अलग बोर्ड या अथॉरिटी बनाई है। कैन यू थ्रो सम लाइट अबाउट यमुना पे कई सारे बोर्ड हैं, नहीं है, जैसे एक तो यमुना जी को जो रेगुलेट करता है, एक तो अपर यमुना रिवर बोर्ड बोलते हैं। जैसे यमुना जी को अगर हम बात करें तो अपर यमुना का मतलब होता है दिल्ली तक, ओखला बैराज तक,
और ओखला बैराज के बाद में हम उसे मिडल और लोअर यमुना बोलते हैं। तो इसमें जो पानी का एलोकेशंस है अलग अलग स्टेट्स का, वो यहीं तक है। क्यों, जो इसके बेसिन स्टेट्स बोलते हैं या राइपेरियन स्टेट्स बोलते हैं, राइपेरियन स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो जैसे हरियाणा का है, राजस्थान का शेयर है, अपर यमुना में दिल्ली का शेयर है और यूपी का शेयर है। कुछ शेयर शायद उत्तराखंड का भी है और हिमाचल का भी है, पर उत्तराखंड और हिमाचल अपना शेयर निकाल नहीं पाते क्योंकि उनको जहाँ पानी की आवश्यकता है नहीं है वहाँ पे उनके पास पानी अवेलेबल है। हरियाणा पूरा शेयर निकाल लेता है। और सबसे स्मार्ट है दिल्ली, कि दिल्ली अपना यमुना जी का जितना शेयर है वो सारा का सारा कहता है कि आप मुझे कैनाल से दीजिए, और यमुना में जो पानी छोड़ना है वो छोड़ने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हमारे हिस्से में से नहीं कटना चाहिए। सो और उनकी भी मजबूरी है, दिल्ली की भी मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली में जितनी जनसंख्या है, जितना दिल्ली का वाटर डिमांड है। तो सर ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि 50 कितने करोड़ हमारे लगभग 7 करोड़ के आसपास होंगे, 50 करोड़ के आसपास हमारी पूरी गंगा बेसिन की जनसंख्या है और 10,000 के आसपास water harvesting and ensuring natural flow. These three things will certainly bring a bare minimum flow so that Yamuna Ji will remain Yamuna Ji after Delhi till I think the problem is where Betwa is. बेटवा तक है, बेटवा Yeah. बेटवा उसको बचा लेती है। Ma'am well said, but it will require huge effort, lot of pressure from civil society and non-governmental organizations, public as well as what? Government has done lot of tremendous work on river-centric development. We have created river city alliances also to share our knowledge. We have launched even global river city alliance, which is India's initiative. So that way we are working on all the platforms, but it requires basically constant steering. This particular today's workshop is Manthan. Manthan will certainly bring certain Amrit and wish also along with it. We have to take it in right perspective. Certainly we have to take it in right perspective. One or two things I just wanted to about NMCG which are Praveen was giving very technical viewpoint because he knows landscape, or you can say river-centric development and river issues very properly. But see, any mission is provided with a limited resource. To improve upon the limitation of resource, the National Mission for Clean Ganga did one innovation, which is in wastewater sector, which is the first sort of innovation in the country, is bringing public-private partnership also. We have developed a HAM model, and our large projects of more than few hundred crores are basically through private investments, wherein we have developed a hybrid annuity model. You know very well, I was visiting, I'm just clearly, few months back I was in Netherlands and I was visiting one STP over there. I have visited at least 50-60 odd STPs in NMCG. I was just asking, how do you manage your STP? Because they were recovering phosphorus, nitrogen from the STP. And they told very clearly that we have got a simple revenue policy. €1 we take for treating the wastewater from the landfill, and €1 we take for providing drinking water from each family. And this is the way they are managing it. Per month, I am talking about per month. It comes out to be, it's not a huge thing which they are taking out from the system. €1 per day, that was the number. But have you thought about it that any revenue scheme is available here, or ULBs are, they have not been provided with, they have not generating these revenue streams. But still NMCG brought this app model, and lot of private investment is coming into all these efforts of National Mission for Clean.
Second thing, to optimize our resources, what we have done, which is applicable for Ganga, Yamuna, every river which is falling in Ganga basin. That is one city, one operator. What was happening? There are certain, you can say, pollution abatement infrastructure. I am not calling it STP. It may be nature-based solution, it may be any other solution, whatever it may be. But something is being created by Ministry of Housing and Urban Affairs. Something is being created by National Mission for Clean Ganga or National River Conservation Authority. Then something is being created by ULP. So there were so many operators for single urban conglomeration, you can say. So in the Ganga basin, what we have done, we have brought the concept of one city, one operator. Reason, as well as when I was talking about HAM model, I just want to say one thing. We pay the annuity to the concessionaire in form of annual payment when he meets the standards of effluent which is prescribed by NGT or Ministry of Environment. Accountability is being maintained and payments are linked with performance. This is one thing which we tried consciously, which is one good initiative, you can say. Second good initiative was one city, one operator, providing operational issues to one particular operator who looks after a particular city will certainly optimize the cost as well as make the person or the concessionaire responsible. So, because if suppose one small STP is maintained by X entity, something is maintained by Y entity, something is maintained by Z, then what will happen? They will be suffering and they will be doing the job simultaneously, which can be done by one entity, will be more optimized. This was the concept. We have got now 22 cities which are under one city, one operator. So these are very good initiatives. I'll tell you, we are now consciously working on nature-based solutions. What madam you were telling, then you talked about reuse of treated wastewater. See, whole Ganga, Yamuna, total basin is in Doha basin, which is agriculture based. Not much of the industries are available over here. Treated wastewater can be utilized for industrial purposes where you can generate revenue. Here, generation of revenue from treated wastewater through industries is a very difficult proposition. What we have done, we have mapped our thermal power plants. We are supplying treated wastewater to thermal power plants. We have got now, we are working with railways also, so that wagon cleaning and all those things can be done through treated wastewater. Mathura refinery, there is another example. 8 MLD, I think, treated wastewater. We supply that treated wastewater. So this way we are trying to increase the reuse of wastewater so that circularity of that particular water is maintained properly. But only thing is that you have to, whatever intervention you have to take or whatever suggestion you are, initially if you remember when I came here, I just told one thing. Our suggestions are to be seen in the perspective of, we are living in Yamuna banks, we are living in Yamuna basin, you can say, Ganga basin. But it has got certain agroclimates, it has got certain urbanization patterns, it has got behavioral pattern as well as it has got our own rituals, mythology associated, our value system, or you can say faith associated with it. So our suggestions should be bounded by these contours, what I wanted to. So you have said something very